أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة السلام الله علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام. اچھا جی میم آپ جی کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا بیٹے میں نے سلام کیا آپ سارے کہیں گے Unmute yourself. جی بیٹے ایک دفعہ جب آپ کو میم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سب ایک مرتبہ میں جواب دے کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ٹھیک ہو گیا جی. وعلیکم السلام. چلیے اب سب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اچھا اب آپ اپنے مائکس میوٹ رکھیں گے اور اب انشاءاللہ ہم اپنا آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے لیسن نمبر 10 اے اور بی کو کور کریں گے. اچھا بیٹے آپ لوگ اپنے کیمراز آف رکھیے گا ٹھیک ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس پہ پورا توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں. اچھا جی ہم حصہ اول میں نماز کے ذریعے سیکھ رہے ہیں 9A بھی تک ہم نے السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. اب آپ میوٹ رکھیں گے ٹھیک ہے. ہم نے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے وہ سیکھی یعنی کہ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اسباق تصور احساس یہ ہم نے ساری چیزیں سیکھی. اسی طرح سے ہم نے TPI کے ساتھ فعل ماضی کا فعل جعل فتح یہ ہم نے چیزیں سیکھ لی. آج ہم کچھ نیا سیکھیں گے. آج کے سبق میں دعائیں اور ثنا اور اسی طرح سے گرامر پارٹ میں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے اسی جو ہم فعل ماضی سیکھ رہے ہیں اس کے تھوڑے سے اور الفاظ سیکھیں گے اور نکات تعلیم اور شوق جیسے ہماری وہ سلائیڈ آئے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں. اور آج کے سبق میں آج ہم نے الحمدللہ سے 14 نئے الفاظ کور کر لینے جو قرآن مجید میں 928 مرتبہ آئے ہیں یعنی کہ 14 نیو ورڈز ہیں جو قرآن مجید میں 928 ٹائمز آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور آج کی دعا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آتی ہوگی بچوں کو ذرا ہینڈ ریز کریں کتنے بچوں کو آتی ہے. اچھا جی چلیں جی ماشاء اللہ. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دعا ہمیں یاد تو ہے ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں ہم کون سی دعا مانگ رہے ہیں. سب سے پہلے ہے ربنا یعنی کہ پہلے ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے ربنا. اس سے پہلے ہم نے وہ ربہو ربہم ربو کا ربی ربکم اور ربنا ٹیبل پڑھا ہے نا یاد ہے نا آپ لوگوں کو. تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ربنا آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ربنا. تو یہ جو اوپر ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی ہے جی یہ جو چھوٹی سی تبدیلی آئی ہے یہ ہے زبر کی. اس سے کیا ہوگا پہلے ہم کہہ رہے تھے ہمارا رب اور اب اس دعا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب یعنی کہ جب ہم دعا مانگیں گے تو ہم کہیں گے اے ہمارے رب. آتینا دے ہمیں. اب اس کو ہم ایسا کریں گے کہ لفظ کا لفظ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے ہم اتنی یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں. اے ہمارے رب دیکھا ربنا اے ہمارے رب. آپ نے جو فرق ہے اس کو بھولنا نہیں. پیش والا جہاں آپ کو نظر آئے آپ نے کہنا ہمارا رب اور جہاں پر آپ کو زبر والا نظر آ جائے ربنا تو آپ نے جلدی سے اس کے ساتھ اے لگا لینا اے ہمارے رب. آتینا دے ہمیں پھر دنیا میں. اچھا جی فی ہم نے کہاں پڑھا فی یاد ہے آپ کو سسٹر ہادیہ آپ کو یاد ہے فی ہم نے کہاں پڑھا ہے فی کے ساتھ کوئی ہم نے ٹیبل کیا ہو
जी अनम्यूट करिए और बताएं मुझे। मैम फी का मतलब में है और हमने एक पूरा टेबल भी किया है ना इसका। यस मैम। जी अच्छा जी, अब दुनिया को देख के आपको पता चल रहा है ये इसम है या फेल है? चले ये हरफ इसको हम है, ऐसे देखें, ये इस्म है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम है। और इसी तरह से हसनात को देखिएगा, ये क्या है? ये भी एक किस्म है तनवीन की वजह से। अब हम देखते हैं इसके टुकड़े कैसे करेंगे। अगर हम रब्बाना के टुकड़े बनाएं तो 2 टुकड़े बनेंगे, रब और ना। ठीक हो गया जी। आतीना के कैसे टुकड़े करने हैं? आती और ना। आती का मतलब है दे और ना हमें, जैसे हम कहते हैं ना, जितने भी हमने टेबल के साथ ना लगाया, जैसे रब्बाना में भी लगाया आतीना, दे हमें। अच्छा जी बेटे इरहा, आप अपना जरा कैमरा ऑफ कर लीजिए। अच्छा जी, ये आतू हमें ना, ये जब हम कुरान पाक तिलावत करते हैं तो हमें नजर आ जाता है अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का। माशाल्लाह से आप लोगों ने कुरान पाक भी पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों के फेमिलियर होगा कि ये हम कहीं ना कहीं इसको पढ़ लेते हैं। और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे अब आगे आप लोग कुरान पाक को मजीद पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इन चीजों को और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब ये जो दुनिया है, दुनिया क्या है? जैसे हम कहते हैं अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा, अदना से दुनिया। ये जो एक फूल नजर आ रहा है आप लोगों को, फूल, ये क्या कह रहा है? इससे पता चल रहा है कि ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है, यानी ये हम मुजक्कर के लिए यूज करेंगे और ये हम यूज करेंगे मुअन्नस के लिए। ठीक हो गया जी। अकबर ये नाम भी होता है ना, इसी तरह से कुबरा लड़कियों का नाम भी होता है। अब देखते हैं ये दुनिया क्या है। अब हमें पता चल रहा है कि दुनिया फूल वाली साइड पर है, यानी कि ये मुअन्नस है, और अदना है मुजक्कर। और ये इसको कहते हैं कि मामूली चीज को, छोटी चीज को। ठीक हो गया जी। फी में हम पूरा टेबल पढ़ के आए हैं, फी ही फी हिम वाला। ठीक हो गया जी। अब दुनिया 115 मरतबा, यानी कि 115 टाइम्स आपको नजर आएगा कुरान मजीद में। अच्छा जी, हमने कहा था मुस्लिम से मुस्लिमा, फिर मुस्लिमा से मुस्लिमात। अब ये उसी तरह से हसना से हसना और हसना से हसनात, ये वही सिंपल वाली जो हमने जमा की है ना, ये उसी तरह से है। अब यहाँ पर ये जो आपको हसनात नजर आ रही है, ये गोलता हमें बता रही है कि ये मुअन्नस है। और जब हम इसकी जमा बनाएंगे, इसका हम, ये सिंगुलर है, जब इसको प्लूरल में लेके आएंगे तो एक अलिफ लगा के लंबी वाली ता लगा लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अक्सर दुआएं, जब हम दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला से, तो अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं। और रब किसको कहते हैं? रब हमें पालने वाला है, हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला, इब्तदा से इंतहा तक, यानी कि हमेशा से है अल्लाह ताला और हमेशा रहेगा। और हमारी हर जरूरत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही पूरा करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं दुनिया की हसनात क्या हैं। हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में कौन सी चीजें हमें चाहिए जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जैसे हमारा खाना पीना सोना, इस तरह से बहुत, पहनना ओढ़ना, फिर हम लोग बाहर भी जाते हैं, सैर करने भी जाते हैं, कितनी चीजें हमें चाहिए होती हैं। जैसे अभी आप बच्चे, आपको खिलौने भी चाहिए होते हैं। ये सारी की सारी जरूरतें ये कौन पूरी करता है? कौन बताएगा मुझे? ये सारी जरूरियात कौन पूरी कर रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। अच्छा जी, अल्लाह खानदान ताला। अल्लाह ताला। अच्छा जी, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं ना घर के जो होते हैं, जैसे बाबा आपके करते होंगे, तो उनको भी जो जितनी भी चीजें चाहिए, वो सारी की सारी जरूरतें सब अल्लाह ताला पूरी करते हैं। माल दौलत नौकरी, जितनी जॉब्स हैं, जो भी काम है, हर जरूरत कौन पूरी करता है? अल्लाह ताला। और ये क्या है? ये दुनिया की हसनात है, दुनिया में ये चीजें हमें चाहिए। वो चीजें जो आखिरत, हाँ जी, वो चीजें जो हमें आखिरत में चाहिए वो क्या है? यानी कि जब हम लोग अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे, फिर हमारी कौन सी चीजें हमें दुनिया में रहते हुए करने हैं काम, जो हमें तब काम में आ जाएंगे? वो है फायदामंद इल्म, यानी कि जो हम सीख रहे हैं। जैसे अब हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह से कोर्स अपना स्टार्ट किया, इसको हम मिड क्विज तक लेके जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह से
एक हमारा लेसन और एमिट क्विज आ जाएगा। तो आपने इतनी देर में इस 10 लेसन में, जैसे आज 10वां हमारा है, 10th जो हमारा लेसन है, 9 लेसन तक जो आपने माशाल्लाह से सब कुछ सीखा, ये आपका इसका जो फायदा है वो आपको यहाँ भी नजर आएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी। इसी तरह से अच्छे तरीके से बात करना, बड़ों का अदब करना, इसी तरह से जो आपसे छोटे हैं उनसे प्यार से शफकत से बात करना, ये सारी चीजें भी जो है ना ये इंसान के काम आती हैं। और इसी तरह से देखें हमारी जो सेहत है, इज्जत है, वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त, ये सारी चीजें दुनिया की जरूरियात, और आखिरत में क्या है, सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास, ये सारी चीजें, यानी कि अल्लाह ताला पर हम जो यकीन रखते हैं, ये जो चीजें हैं ये हमारा अकीदा खालिस करने वाली, ये हम दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे और ये हमारी आखिरत की हसनात हो जाएंगी, अमन और सुकून। और ऐसा ये एक छोटा सा नोट भी लिखा गया, कोई भी चीज हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे, कि दुनिया में तो हमें फायदा नजर आ रहा हो लेकिन वो आखिरत को बर्बाद कर दे, नुकसान दे, तो वो उसे हम हसना नहीं कहेंगे। एक मर्तबा आप म्यूट रहते हुए पढ़ लीजिए। वफिल आखिरा, बा और फी में अल आखिरा हसना। अच्छा जी, वाह और में आखिरत, आखिरत ये हमें सारे अल्फाज जो हम पीछे पढ़ के आए वही है, कोई नया लफ्ज यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इसमें ये आखिरा, और ये किससे मिलता जुलता है, ये जो हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना आखिरत। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर आपको कहा जाए वा फिल आखिरा, इसके आप टुकड़े कर लें, तो आपने क्या करना है, वा को अलग कर देना है, फी को अलग कर देना और अल आखिरा को अलग कर देना। अब ये जो अलिफ और लाम है ये हमें क्या बता रही है कि ये इस्म है, वा और फी हर्फ है। जैसे हमने देखा अकबर से कुबरा, ठीक हो गया, इसी तरह से हम देखते हैं आखिर और आखिरा, जैसे मुस्लिम, मुस्लिमा। अब आपको ये जो इधर एक फ्लावर बना हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये जो बोलता है ये हमें फेमिनाइन होने का पता बता रही है। ठीक हो गया जी। इसके अगर हम आएंगे इसके मुजक्कर पे तो वो होगा आखिर, और इसका जो मुअन्नस है वो होगी आखिरा। हसन हसना हम देख चुके, पहले हमने देख लिया ना कि दुनिया की हसनात क्या है, अब हम देख रहे हैं आखिरत की हसनात क्या है। अल्लाह ताला की खुशनुदी, जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो, राजी हो। तो सबसे पहले हमने जिस चीज का बहुत ख्याल रखना है वो है नमाज। ठीक हो गया जी। और इसके बाद देखिए कि जन्नत में जाने की हमने दुआ भी करनी है और इसके लिए कोशिश भी करनी, जो जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए तैयार की है, उसके लिए यहाँ पर हमने एफर्ट करनी है। और क्या करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी, उनकी कुर्बत, उनके पास रहने का हमें मौका मिलेगा। इसी तरह से ये भी होगा कि जैसे दुनिया में ना हम सारी फैमिली होती है, साथ साथ इकट्ठे रहते हैं, इसी तरह से जब हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, तो इसका ये एक फायदा ये भी हो जाएगा कि जन्नत में सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हमेशा का साथ मिलेगा। और हर चीज से बढ़कर क्या मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार मिलेगा, यानी कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख सकेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रजा मिलेगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रजा हमें मिलेगी। अच्छा जी, अब आप में से कोई एक बच्चा इसको पढ़ ले, हैंड रेस कीजिएगा, मैं जिसे कहूंगी वो फिर पढ़ ले। वफिल आखिरति हसनतन, और आखिरत में भलाई। ठीक हो गया जी, अब म्यूट कर लीजिए। अब है वाकीना आज़ाबन नार। अच्छा जी, जब हमने वाकी और ना इसको देखना है ना अपने आप, देखें आपको होमवर्क में आ जाता है या आपसे क्विज में पूछ लिया जाता है, तो अब हमने क्या कहना है कि वा की और ना, हमने इसके 3 टुकड़े बना लेने हैं। ये देखिएगा, वा और की बचा, इसी तरह से ना। अब ये की और वा ये 2 छोटे छोटे से हो गए, और ना देखिए 2 लफ्जों से, ना वही है जो हम अपनी तरफ इशारा करते हैं ना, और बचा हमें, ये हम किसको कह रहे हैं, हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं। शुरू में हमने रब्बाना कहा था, अब हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह बचा हमें, किससे बचा, अजाब से।
अच्छा, अब ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ना 322 लिखा हुआ है, ये आपको बताया जा रहा है कि कुरान मजीद में ये अल्फाज इसी तरह से तरतीब के साथ पूरे कुरान मजीद में मौजूद हैं। और अजाब फिर किसका कहा? आग का। आग जलाने वाली, आग जलाती है ना, जैसे अब आप लोगों को घर में मन्ना भी करते होंगे कि आग के करीब नहीं जाना, आग से जल जाते हैं। तो इसी तरह से हमने कोशिश करनी है कि आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला आग से बचाए। उसके लिए हमने दुआ भी करनी है, उसके लिए एफर्ट भी करनी है। नार का लफ्ज, ये जो आग है, ये 145 यानी 145 टाइम कुरान मजीद में हमें नजर आएगा। अच्छा जी, जो होंगे गुनाहगार मुसलमान, अल्लाह माशाअल्लाह ताला हम सुभान सबको गुनाहों से बचाए। जी, अच्छा जी, मा- गुनाहगार माशाअल्लाह मुसलमान सुभान सफाई के बाद जन्नत। बेटे जी कहिएगा दोबारा। माशाअल्लाह सुभान माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, गुनाहगार मुसलमान, गुनाह हो जाते हैं ना, मुसलमान तो हैं हम, लेकिन कभी-कभी हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद। तो उसके लिए सफाई का एक तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया। वो क्या है कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करनी है। ये जो दुनिया की हमारे ऊपर मुश्किलात आ जाती है ना, तो इसमें हमने फिर ये कि परेशान नहीं होना कि ये हम मेरे साथ ही हो गया, ऐसी बातें नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला से तौबा करनी है। ये भी हो जाता है कि हमें इस मुश्किल से गुजार दिया जाए और जो आखिरत में हमारे लिए आसानी कर दी जाए। इसी तरह से मौत की मुशक्कत है, ये भी हमने दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें आसान मौत अता फरमाए। जो हमारे कब्र के, हशर के मामलात होंगे, वो भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। और अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे तो क्या होगा? मज़ीद गुनाहों पर आग में डाल दिया जाएगा। तो हमने क्या करना है? गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि आग का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है। ठीक हो गया जी? और इसका आसान सा तरीका क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 टाइम इस्तग़फ़ार, ठीक है? इस्तग़फ़ार किया करते थे। कैसे हम कर सकते हैं? हमारे घर में वो तस्बीहां वगैरह मौजूद होती, नहीं तो हम अपने हाथों पे हम काउंट करते हैं ना, जब हम प्लस या माइनस के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो हम अपने हाथों को यूज कर रहे थे, तो ये इसके लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक हो? और हमने ये कोशिश करनी है, अगर हम एक ही दफा में नहीं 100 मरतबा पढ़ पा रहे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके 10 टाइम करके पढ़ लें या 20 करके पढ़ लें, लेकिन इसको पढ़ना अपनी, इसको ना डेली रूटीन में ले आना है। और इसी तरह से हमने इस बात पर भी यकीन रखना कि अल्लाह जिसको चाहे माफ कर सकता है अपनी रहमत के सबब, क्योंकि हमने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला मेहरबान है, रहम वाला है। ठीक हो क्या जी? और अब हमने इसके साथ साथ दुआ भी करनी। क्या दुआ करनी? कि ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा, मुझे नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमा, मुझे आग के अजाब से बचा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। अच्छा जी, अब एक बच्चा कोई इसको पढ़ ले, तिलावत कर ले। वकीना अजाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। हाँ जी, अजाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। अजाब से आग के। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप सब म्यूट करेंगे, जब मैं कहूंगी कि आप अनम्यूट करें, फिर हम और पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी ये वाली दुआ कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे नमाज के बाद, जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के बाद हमने दुआ करनी है। तो अब ये जो आज हम दुआ सीख रहे हैं ना, ये खास दुआ है। अब आप हम इसको ऐसे करेंगे कि देखेंगे कि क्यों अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी, अपने एक दोस्त का, उनका नाम क्या था? हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु, उनका हाथ पकड़ा। ठीक है? ये मोहब्बत की निशानी। ठीक है? हाथ पकड़ा, फिर कसम खाते हुए कहा, मोहब्बत की दूसरी निशानी की। यानी ये इतनी अहम दुआ है कि पहले हाथ पकड़ा, फिर कसम खाई, और फिर उसके बाद ये कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर कहा कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि इस दुआ को कभी ना छोड़ना। अब हम देखते हैं कि जब नमाज के बाद जब भी हम ये दुआ पढ़ेंगे तो इसका कितना सवाब होगा। यानी कि हम देख लेते हैं अहमियत क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हाथ पकड़ के अपने सहाबी का फरमाया, फिर कसम खाते हुए कहा, और फिर सबको ये वसीयत कर दी। ये जैसे हम कहते हैं ना, नसीहत कर दी कि ये दुआ आपने कभी भी नहीं छोड़नी। आज हम इस दुआ को सीख लेते हैं। यह है अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका
व शुक्री का व हुस्न इबादत। ठीक है, अब ये अगर पहली दफा हम जब सुनते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है ये कितने मुश्किल वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा अभी हम सीखते हैं। पहले हमने देख लिया ना कि ये इसकी दुआ की अहमियत क्या है। अभी हम इसको एक एक हर्फ को, एक एक लफ्ज को सीखते हैं। ठीक हो गया जी? ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, अला पर जिक्री का, तेरा जिक्र करने पर, वा और शुक्री का, तेरा शुक्र करने पर, वा और हुस्नी अच्छी बेहतरीन, इबादत यानी कि इबादत जो हमने इबादत अल्लाह ताला की इबादत करनी है। वो किसकी इबादत? अल्लाह ताला की। तो तेरी की जो ये जो हम कह रहे हैं ना कि तेरी इबादत हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि यानी अल्लाह ताला का जिक्र करना हो, अल्लाह का शुक्र करना हो, अल्लाह ताला की अच्छी इबादत करनी हो, उसके लिए भी हमने क्या करना है? हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जैसे एक दुआ हमने पहले सीखी रब्बाना आतिना, अब ये एक और दुआ है कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। ठीक हो गया जी? अब आपको ये जो नजर आ रहा है, जी जी कहिएगा, दोबारा कहिएगा। मैम ये दुआ मैं सुना सकता हूँ? हाँ जी सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो आपको नजर आ ना ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2, तो हमने इन चीजों को भी इसी तरह से देख लेना, याद कर लेना कि ये कितनी कितनी मर्तबा इसी तरह से हमने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं कुरान पाक में, या वैसे या हम इसको पहले पढ़ के आए हैं। तो ये सारी चीजों को हमने देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अल्लाहुम्मा को देखते हैं। आपने अल्लाहुम्मा दुरूद शरीफ में भी पढ़ा था ना। अब आप में से मुझे कौन बताएगा इसके कितने टुकड़े बनते हैं अल्लाहुम्मा के? जी हाँ दिया। तो मैंने क्या पूछा? ये एक है। ठीक है, ये एक ही टुकड़ा इसका, बस एक ही पूरा ये कलमा पूरा जुमला हम कहते हैं ए अल्लाह अल्लाहुम्मा, बस इसके टुकड़े नहीं करने, ये याद रख ले। जहाँ पे ये लिखा हुआ आपके पास बुक में उसके ऊपर एक 1 लिख के उसके बाहर दायरा बना लें, एक सर्कल बना लें, और इसके लिए उसको बस याद कर लें कि ये बस एक पूरा लफ्ज है। ठीक है, इसके टुकड़े नहीं करने, नीचे लिख लें इसके टुकड़े नहीं करने। ए अल्लाह आ इन एक अलग से लफ्ज है, और नी वो जो हम मेरा अपनी तरफ वाला इशारा करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं रब्बी जिदनी, ए अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर, हम दुआ पढ़ते हैं ना रब्बी जिदनी इल्मा, ये उसी तरह से नी है, अपनी तरफ इशारा हो रहा। और इन्हीं के पूछे तो 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े हम यहाँ पर करते हैं ना, क्लास में कर लिए, बुक में हमने देखा, जो टुकड़े किए उसी के टुकड़े करने, अपनी तरफ से आपने कोई टुकड़ा अलग से नहीं करना। अब जैसे अला एक अलग वर्ड है, जिक्री अलग है, और का वही हमने जो टेबल में किया है ना उसी तरह से अला, जिक्री और का 3 टुकड़े कर लेने हैं। अच्छा जी, अभी मैं स्लाइड आगे नहीं लेके जा रही। अब आप मुझे बताएं वह शुक्री का के कितने टुकड़े करेंगे? कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी बताएं। 3 वाह शुक्री और का। ठीक हो गया? 3 अल्हम्दुलिल्लाह। वाह हुस्नी, अब ये इसके वाह एक अलग है, हुस्नी एक अलग है, और इसी तरह से इबादती और का ये अलग अलग है। ठीक हो गया जी? अब हम इसको देख भी लेते हैं। ठीक है, इबादती के यहाँ पे टुकड़े किए नहीं, लेकिन है उसके भी इसी तरह से हम 2 टुकड़े बनाएंगे। इबादत एक अलग वर्ड है और का अलग है। ठीक हो गया जी? अब हमने क्या कोशिश करनी है? हमने इस चीज को महसूस करना है कि जो मैंने पहले नमाज पढ़ी, कौन सी नमाज पढ़ी, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, वो जैसे मैंने पढ़ी, अब मैं जो अपनी असर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वो हमारी जोहर से बेहतर हो, और इसी तरह से करते करते हम अपनी नमाजों को इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। और नमाज के बाद ए अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं, यानी कि नमाज में तुमने अल्लाह ताला का जिक्र भी कर लिया, दुरूद भी पढ़ लिया, दुआएं मांग ली ढेर सारी, और ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ी उसके बाद हम भूल जाएं कि अल्लाह ताला के हमारे ऊपर क्या क्या एहसान आते, और हम फिर वही मोबाइल में, गेम में, वीडियोस में उसी तरह से लग जाए। तो कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को याद रखें, अल्लाह ताला करते रहें, जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उससे मना हो जाए, जिसका हुक्म दिया वो करते रहें। ठीक हो गया जी? और यहाँ पर 3 बातें हैं। कौन कौन सी अल्लाह ताला की हमने मदद मांगी है ना, किन चीजों में? जिक्र, शुक्र, इबादत। ठीक है, दुआ क्या करनी है? अल्लाह मैं सारी जिंदगी
तुझे याद करते हुए अब जिक्र की बात हो गई शुक्र गुजारी के साथ, यानी कि अल्लाह ताला का ढेरों ढेर लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए तेरी बेहतरीन इबादत करती रहूं या करता रहूं। देखो क्या जी, अब ये जो चीजें है ना, जिक्र करना, शुक्र करना, इबादत करना, ये भी अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम कर नहीं सकते। और इसके बाद एक और प्यारी सी दुआ, ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजारूं कि वो तेरी बेहतरीन इबादत बन जाए। सब कहें कि आमीन। और हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपनी नमाजें भी ठीक करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला का ज्यादा जिक्र करेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा इसको? जल्दी से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। चलो जी, अब जब रोकते हैं तो फिर इबादतिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रुक गए तो हम इसको फिर इस काफ के ऊपर हम इसको रोकने के लिए ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इबादतिक। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने आज जो सबसे शुरू में हम जब नमाज शुरू करते पढ़ते हैं ना, एक अल्लाह ताला की तारीफ सना व बिहम्दिका तबारक स्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, अच्छा जी, सुना ले जी, सुना ले। अच्छा जी, नमाज शुरू करने से मतलब जब हम शुरू करते हैं तो सूरह फातिहा से भी पहले पढ़ते हैं ना, हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। उसके बाद फिर हम तआवुज़ पढ़ते हैं, फिर हम तस्मिया पढ़ते हैं, जो हमने सीखा भी है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो जब हम खड़े होके पढ़ते हैं तो वो हम अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे होते हैं। वो हम कह रहे होते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका इस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सुबहाना का, अब ये जो का है ना, ये हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, ठीक है। सुबहान, आप लोगों ने सुना होगा, नाम भी होते हैं ना बच्चों के, बड़ों के सुना होगा सुबहान। अब ये जो का है इसको हमने अलग कर देना, सुबहाना का पाक है तू ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा अभी हम पीछे भी पढ़ के आए ना, इसके हमने कोई टुकड़े नहीं बनाने। वह भी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। वह तबारा का, और बरकत वाला है। क्या बरकत वाला है? इस्मु का, तेरा नाम। वह ताला, और बुलंदो वाला है। क्या बुलंदो वाला है? जद्दू का, तेरी बुजुर्गी। और नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे। अब हम एक एक लफ्ज को भी देखेंगे, ठीक हो गया जी। सबसे पहले है सुबहाना और का। अब सुबहान अल्लाह हम पढ़ते हैं ना, एक तस्बीह हम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह से अल्लाहु अकबर। तो ये उसी तरह से है सुबहान। यहाँ लिखने में ये जो छोटी सी ये खड़ी जबर दे दी गई ना, ये भी इसी तरह से हम समझेंगे कि ये अलिफ ही लिखा हुआ है, ठीक है। सुबहाना पाक है, का तू। आपसे पूछा जाए सुबहाना के टुकड़े करें, सुबहाना का के हम 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है क्या जी। अल्लाहुम्मा कोई टुकड़ा नहीं हमने करना, हमने करना ये पूरा एक ही वर्ड है, ए अल्लाह। इसके बाद है व बिहम्दी का, और तारीफ है तेरे लिए। हमने शुरू में पढ़ा था ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने कहा था अलहम्द के कितने माना है? तारीफ और शुक्र। ये भी वही है, तारीफ और शुक्र, ठीक है। यहाँ हम तारीफ की बात कर रहे हैं। और बी, वा को अलग कीजिए, बी को अलग कर दीजिए, हमद को अलग कीजिए, और का को अलग। 4 टुकड़े बन गए। और साथ तारीफ तेरी। आपने इसके ऊपर लिख लिया करिए, जैसे अब ये पूरा वर्ड लिखा है, इसके ऊपर 1 2 3 4, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह आप पाक हैं। इसके बाद हम आगे अल्लाह ताला से बात करें कि ए अल्लाह जितनी भी तारीफ है, यानी कि सब, और तारीफ किसकी है? अल्लाह ताला की, तेरी तारीफ है। तारीफें और शुक्र, ये हमने इसका मना इसको देख लिया। अच्छा जी, हम्द क्या होती है? हम्द अल्लाह ताला की खूबियों का बयान करना। और जो हम तस्बीह कहते हैं ना, तस्बीह जैसे सुबहाना, ये तस्बीह है, इससे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ताला में कोई नुक्स, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला की जब हम हम्द करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द, ठीक है, वो हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और जब हम तस्बीह कहते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, अल्लाह ताला में कोई नुक्स मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला कमजोर नहीं है, जालिम नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसमें कोई नुक्स नहीं है। और इसके बाद जो अगली चीज है ना, वो हमने जो समझनी है, अच्छी तरह से इसको समझना है कि उसने मुझे जिंदगी में ये जो इम्तिहान दिया है वो बिल्कुल सही है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ये हमने क्या करना है कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपना मस्बत रवैया रखना है।
हमने अल्लाह ताला के बारे में ये नहीं कहना कि अल्लाह ताला को बस मैं ही मिली थी, मैं ही मिला था जो ये मेरे साथ हो गया। हम कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इम्तिहान में डाला, अब इसी में से वो निकालने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम अभी हमदी का तारीफ और शुक्र भी दीन की एक अहम बुनियाद है, यानी कि अल्लाह ताला का हमने शुक्र भी अदा करना है और अल्लाह ताला की तारीफ भी करनी है। जब तक तस्बीह सच्ची नहीं होगी, सच्चा शुक्र और सच्ची तारीफ नहीं हो सकती। और किसी के कामयाब होने का जो राज है ना, वो ये है कि हम अच्छा सोचें। हम जैसे हमने पढ़ा था कि अपने जिस्म को शुक्र में डुबो दे, रात को सोने से पहले हम क्या करें, हम अल्लाह ताला की नेमतों को याद करें। बहुत सारी नेमतें तो ऐसी भी हैं जिन्हें हमने कभी समझा ही नहीं वो नेमत है। उठना, देखिए सुबह को हम उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सांस लेना, इसी तरह से जो पानी है, धूप है, हर चीज को देखें। फिर अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होती है ना, हम देखते हैं कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है। तो इस तरह से अपने आप को हमने पॉजिटिव रखना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है व तबारका। अब ये जो वाह को अलग करना है, तबारक के टुकड़े नहीं करने। ठीक हो गया। जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, जुम्मा मुबारक, ये जो मुबारक है ना, ये उसी तरह से एक लफ्ज है तबारक। अब हमने ये नहीं कर देना तबार को अलग कर दे और का को अलग कर दे। और बरकत वाला है इस्मू का, इस्मू का के हम दो टुकड़े करेंगे। ठीक है, इस्म और का। जहाँ पे तबारक लिखा हुआ आपकी बुक में, उसके ऊपर छोटा सा ऐसे एक क्रॉस बना के उसको एक दायरा लगाए, उसके साथ लिखना है टुकड़े नहीं करने। ठीक हो गया जी। इस्मू का, नाम तेरा, हम इसके दो टुकड़े कर, इस्म कहते हैं ना, इस्म जैसे आपका इस्म क्या है, आपका नाम क्या है, जैसे हमने सीखा कि इस्म क्या है, जिसको अल और तनवीन लग जाए, ये वही इस्म है। ठीक है, नाम। और का तेरा, वा और ताला। ताला जैसे हमने पढ़ा था सुभान रब्बी आला, उसमें भी हमने अल्लाह ताला की बुलंदी की बात की थी। ये दोबारा से उसी तरह से हम अल्लाह ताला की बुलंदी की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, बुलंदो बाला है, आली शान है, अल्लाह ताला की शान हम बयान कर रहे हैं। और इसके बाद हम कहते हैं जद्दू का। अब ये जो जद्दू है, ये भी हमने थोड़ा इससे मिलता जुलता एक लफ्ज दुरूद में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? हमीदुम मजीद। वहां भी हम अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान कर रहे थे ना, कि ये अल्लाह ताला के सबसे बड़े होने की हम गवाही दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बड़े। यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं। अब इसको हमने, ये आपको अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जद्दे अमजद अबाओ अजदाद, इसको रहने दे। हम कहते हैं कि सबसे बड़े अल्लाह ताला है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला को हमने फिर सबसे पहले क्या कहा कि तारीफ भी सारी अल्लाह ताला के लिए है, बरकत भी सारी अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला का नाम सबसे बुलंद है और अल्लाह ताला के लिए बुजुर्गी है। अच्छा जी, मैं जिसको हम कहते हैं सबसे बुलंद, कोई दुनिया का कितना ही ताकतवर हुक्मरान या बादशाह हो, अल्लाह ताला के सामने बेबस है, कुछ भी नहीं है। अब है वा ला इलाहा। इलाहा को हम पहले भी बार बार पढ़ के आए हैं ना। तो इलाहा का क्या था माना? कि जिसकी इबादत की जाए और जिसका हर हुक्म माना जाए और जिसकी इताअत की जाए। जिस काम से अल्लाह ताला ने मना किया उससे मना हुआ जाए, और जिसको करने का हुक्म दिया वो किया जाए। और वो कौन है? इलाहा कौन होता है? माबूद होता है, जो बड़ी मोहब्बत से हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारी जरूरतें हैं मोहब्बत से ख्याल रखता है। और सिर्फ हमारी नहीं, पूरी कायनात में अल्लाह ताला हर एक को रिज़्क भी देने वाले और हर एक का मोहब्बत के साथ ख्याल रखने वाले। वा ला और इलाहा, इसके हम यहाँ पर 3 टुकड़े करेंगे। इसी तरह से गैरु और का, गैर हम उर्दू में भी बोलते हैं ना गैर, ये वही इसी तरह से है। गैरु और का, इसके भी 2 टुकड़े कर लेंगे। अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार और शिर्क से मुकम्मल बेजारी। अगर हम ये नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को एक नहीं मानेंगे, तो उसे क्या होगा? निजात मुश्किल होगी। इसका क्या माना निजात मुश्किल होगी? यानी कि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो फिर वहां पे जो हमारा इम्तिहान होगा उसमें तो हम फेल हो जाएंगे। हमने क्या करना है? हमने अल्लाह ताला को एक मानना है और अल्लाह ताला की सारी बातें माननी है। अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज माफ नहीं करेगा, यानी कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी और को बराबर लाएं। जी मेरा बेटा, क्या पूछा आपने? अच्छा जी, शिर्क के खतरनाक को ज़हन में रखते हुए पढ़ना है। अच्छा का क्या मतलब है? किसका? वहदानियत का। वहदानियत, एक, वाहिद कहते हैं ना, वाहिद, एक, अकेला। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये सारा हम देख चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज हमने जो चीजें कवर की वो भी हमने देख ली। और अगर कोई
कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो पूछ लीजिए, जबकि मैं आपसे पूछती हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताइए कि हमद के दो क्या माना पड़े हमने? तारीफ और शुक्र। तारीफ और शुक्र। तारीफ और शुक्र। ठीक हो गया जी। अब हमने तारीफ और शुक्र। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना ग्रामर की ब्रेक है, इस ब्रेक में क्या करना, अपने हाथों को जरा हिला लीजिए। अब हमने अपने हाथों को यूज करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम अपने ग्रामर पढ़नी, ग्रामर में हम करते हैं टीपीआई, ठीक है। अब हम टीपीआई करते हैं। पानी वानी पीना, किसी ने पानी पी के आना तो जल्दी से पी के आ जाए, फिर हम शुरू कर रहे हैं। इतनी देर में पानी पिया जाता है और हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, फेल माजी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फेल। इससे पहले हमने हरूफ पढ़े थे, जो अभी हमने ये जो रिवीजन की क्लास में आप लोगों ने किए ना, उसमें टेबल्स बनाए, वो हमने किए थे हुरूफ, उनके साथ मिलाई थी जमीरें, यानी कि उसके साथ एक दो दो लफ्जों को मिला के हमने पूरे पूरे टेबल बना लिए। अब ये जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये फेल है, फेल माजी। ये क्या है, नौसरा उसने मदद की। आज जो हम पढ़ेंगे ना, खलका उसने पैदा किया, ज़कारा उसने याद किया या उसने जिक्र किया, आबदा उसने इबादत की। अच्छा जी, अब सारे बच्चे इसी तरह से जैसे स्माइली बनी हुई ना, इसकी तरह मुस्कुराएं। और हम अब कहेंगे कि ग्रामर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये आसान है। कैसे आसान है, हमने टीपीआई के जरिए इनके अपने पूरे वजूद को इस्तेमाल में लाना है, ठीक है जी। हम हर बार देखते हैं ना कि कैसे करना है, हमने सोचिए, देखिए, सुनिए, ये सारी चीजें हमने बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, यानी कि अपने कान, आंख, दिमाग, आवाज, अपने हाथ, अपने दिल और अपने साथियों का इस्तेमाल करना है। साथियों का कैसे करेंगे? जी जी मैं इसे पढ़ लूं, सुनिए देखिए को। बिल्कुल पढ़िए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। ये आप इशारे ऐसे साथ साथ करते हैं, ये अब जब मैम आपको इशारे करके दिखाती है ना, इसका मतलब है कि आपने भी करने हैं, ठीक है। इशारों से हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो अल्फाज, जितने कुरान में जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए, वो कितनी तरह के, कितनी टाइप्स होती है, इस्म, फेल और हर्फ, ठीक है। इसम में हमने क्या सीखा था, जैसे किताब भी इसम है, मक्का भी इसम है, इसी तरह जिसमें कोई किसी की क्वालिटी होती है ना, उसको भी हम कहेंगे कि ये इसका इसम है। मुस्लिम है, कोई मोमिन है, ये सारी चीजें हम कहेंगे कि ये इसम में आ गई। और इसकी निशानी क्या है, शुरू में अलिफ लाम नजर आएगा, या हमें एंड पर इसके तनवीन यानी कि दो पेश, दो जबर, दो जेर नजर आ जाएगी। इसी तरह से जो फेल है, फेल क्या होता है, जिसमें काम का करना या होना, यानी कि उसमें पता चल रहा हो कि कोई काम किया जा रहा है। जैसे हमने कहा फ़अला उसने किया, तो कोई काम है ना जो वो कर रहा है। इसी तरह से जैसे हमने कहा फ़तह उसने खोला, तो कोई है जो कोई काम कर रहा है, दरवाजा खोल रहा है, ठीक है ना। और वो है जो हमें नजर नहीं आ रहा, और इसमें जमाना भी पाया जाता है। इसी तरह से हुरूफ क्या है, ये इस्म और फेलों को मिलाते भी हैं। और इसके अलावा भी देखिए कि हमने बहुत सारे अल्फाज वैसे भी पढ़े, कुछ हमने मिला मिला के पढ़ लिए, फ था, व था, इनको हमने वैसे भी एक एक हर्फ को देख लिया था ये क्या है। अब हमने देखा कि अरबी में अक्सर जो अल्फाज बने होते हैं ना, जो फेल बने होते हैं, वो तीन तीन हरूफ होते हैं, जैसे फा, ऐन, लाम, फाता और हा, नून, स्वाद, रा, इसी तरह से दौद, रा और बा। अच्छा जी, अब हम बाकी चीजें अभी छोड़ते हैं, अभी हम देखेंगे फेल माजी। वैसे तीन है, फेल माजी है, मुदारे है, अमर है, ठीक हो गया जी। परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है और इम्पेरेटिव टेंस है। तो हमने क्या करता है, सिर्फ फेल माजी को देखते हैं। फेल माजी क्या है, तो हो गया। अब जो हो गया इसका क्या मतलब है, अच्छा जी पहले हम देख लेते हैं। एक सेट है हमारा, नौसरा, खलका, अबदा, वकरा, ये हम पहले कर चुके हैं। फतहा, जआला और इस तरह से फ़अला, ठीक हो गया। ये तीन हमने किए थे, आज हमने ये वाले करने हैं। ये है नौसरा, खलका, अबदा, ज़करा, और ये नून क्या लिखा हुआ इसको हम आगे समझेंगे। अभी आप इसको छोड़ें, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। हमने कहा एक एरोप्लेन है, ठीक हो गया जी। अब एरोप्लेन आ रहा है, ये चला गया, अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें सिर्फ उसकी टेल नजर आ रही है। अब ये जो टेल नजर आ रही है ना, इसी पे हमने तब्दीली कर देनी, इसमें थोड़ा सा चेंज करके हमने बनाया था फ़अला से फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं टेबल अपना नौसारा। नौसारा का क्या मतलब है? उसने मदद की। अच्छा, टेबल सारे एक जैसे होंगे, यानी कि अगर शुरू में बात की जा रही है ना, उसने मदद की, उसने खोला, उसने देखा, तो ये इसी तरह से सबसे पहले हम यही वाला ही यूज करेंगे सीगा, यानी कि उसने मदद की, नौसारो उन सब ने मदद की। फिर हम अपनी और मेरी बात कर लेते हैं, अपनी वन फिंगर के साथ इशारा करते हुए एक, ठीक है? जैसे सिंगुलर की बात करते हैं, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की। इसके बाद हम कहते हैं कि आप सबने मदद की। अब क्या करेंगे? अपनी फोर फिंगर सामने की तरफ हम कहेंगे नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। दोबारा से देखिएगा, मसारा उसने मदद की, नसर उन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। नसरा नसरू दो दो करके करेंगे ना, जैसे कलर कोडिंग हुई है तो बहुत आसान हो जाता है। मसरा नसरू, नसरता नसरतू, नसर तुम नसरना। अब आप हैंड रेस करेंगे जी। जो पहले हैंड रेस करेगा जी, सबसे पहले हादिया ने हैंड रेस किया। चले जी, हादिया करेंगी। अभी आप लोग हैंड रेस ही रखिएगा, फिर मैं सबसे बारी बारी करवाऊंगी, ठीक है? इसको मैं कहूंगी वही करेगा। सबसे पहले हादिया करेंगी। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने। हम सबने मदद की जी, माशाअल्लाह। इसी तरह से जैसे हमने कहा था नौसारा, इसी तरह से खौला का। देखो गया जी, खौला का उसने पैदा किया, खौला को उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलका खलकू खलकता खलक तू खलक तुम खलक ना। ठीक हो गया? फिर सुने, खलका खलकू खलकता खलक तू। फिर रुक जाए, खलक तुम खलक ना। दो दो में डिवाइड करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद होते हैं जी। मुतहरा, खाला का उसने पैदा किया, खाला को इन सब ने पैदा किया, खाला का खलकता आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। माशाअल्लाह जी। हाँ, यानी भी बहुत प्यारा टेबल सुनाया और आपने भी बहुत प्यारा, जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर। अच्छा जी, अब ये वाला टेबल मैं पढ़ती हूँ, तो फिर ताहा बेटे आपने अनम्यूट करना। पहले मैं बताती हूँ आपको ये टेबल का कैसे माना करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी म्यूट रखिएगा, अभी म्यूट रखिए, ठीक है? ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। जैसे ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतु, ज़करतुम ज़करना। फिर से सुनिए, ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतु, ज़करतुम ज़करना। जी ताहा बेटे, अब आप करेंगे। ज़करा करें 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 जल्दी से। ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना। करना। अच्छा जी, अब्दुल मोइज बेटे, अब आपने करना है, इसके साथ साथ आपने तर्जुमा भी बताना है। ज़करा इसने जिक्र किया, ज़करू इन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप सारे गौर से सुने। जब हम कहेंगे ना ज़करा उसने जिक्र किया, उसके आगे दूर है, इस तो ये सामने होता है, इसने किया है ये, ठीक है? जैसे अब आप कोई बात अपनी मम्मा को बता रहे हैं, इसने किया, लेकिन अगर आप कोई बात बताते हैं ना कि वो दूर उस दुकान में मैंने देखा था, तो ये दूर वाली बात हो रही है, उसने जिक्र किया, उन सब ने जिक्र किया। ठीक हो गया जी? अगर हम ये करीब वाला करेंगे ना, ये थोड़ा फिर इसका माना चेंज सा हो जाएगा। ये आपने याद रखना, आप सबने इसको इस तरह से करना है कि जितने भी आप टेबल बनाए उसमें आपने ये उस कहना, ठीक है? इस नहीं कहना। अब एक और टेबल है, वो है आबादा उसने इबादत की, आबद तो उन सब ने इबादत की। हाँ, आप करेंगे, लेकिन पहले आप मुझसे सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप करेंगे, ठीक है कर लो जी?
आप करेंगे, आपको मौका मिलेगा, अभी आप हैंड रेज रखिए। हाँ, मुझे पढ़ने दें, फिर आप पढ़िएगा, ठीक है। पहले आप टीचर से सुनेंगे ना, मेरी टर्न है, मेरी टर्न पे आप बोलेंगे तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। अबदा, उसने इबादत की, अबदू, उन सब ने इबादत की, अबदता, आपने इबादत की, अबदतु, मैंने इबादत की, अबद तुम, आप सब ने इबादत की, अबदना, हम सब ने इबादत की। अच्छा जी, आप लोग जब आप कारी साहब से पढ़ते हैं या कारिया से पढ़ते हैं तो आपने ये जो इसके ऊपर ये एक छोटा सा सिंबल बना हुआ, इसको पढ़ा होगा, इसको कहते हैं तशदीद या इसको शद कहते हैं। अब हमने क्या करना है, ये टेबल थोड़ा सा चेंज है, पीछे जितने टेबल किए ना, इसमें हमने क्या करना है, हमने ये जो दाल है ना, इसकी आवाज ता के अंदर मर्ज कर देनी है, मिला देनी है। अब कैसे? हाँ जी, इसको साइलेंट कर देना दाल को, ठीक है। और जो उर्दू समझते हैं हम कहेंगे कि ये जो जज़म है ना, जज़म, इसको हमने हजम कर लिया। अब हमने इसको नहीं पढ़ना, हम कहेंगे ये क्यों करते हैं, क्योंकि दाल और ता हम जब इसको बोलते हैं ना तो एक जैसी आवाजें निकलती हैं। तो अब हम कहेंगे अबद, अबद तू, अबद तुम, तीन में। अच्छा, अब ये नहीं करना कि सब में आप तशदीद लगा दें, नहीं, अबद ता, अबद तू, अबद तुम, जिसमें ता आई है, ठीक है जी। आप कौन कह रहे थे? ईमान कह रही थी मैं करूं टेबल? मैं कह रहा हाँ जी, कर, जो कह रहा था वो करे। मैं पहले चीज कर सकता हूँ। करें करें करें। ये क्या, जब मैं कहती हूँ करें तो फिर आप माइक ही नहीं ऑन कर रहे। अबदा, इसने इबादत, अबदा इसने इबादत की, उसने इबादत की, अबदू, इन सब ने इबादत की, अबद, अबदत, आपने इबादत की, अबदता, ठीक है, अबदता, अबदता, आपने इबादत की, अबद तू, मैंने इबादत की, अबद तुम, आप सब ने इबादत की, अबदना, हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास है, किसने लिखा हुआ, लवली हनीन, कुछ इस तरह से नाम लिखा हुआ है, आप करें। नहीं करना चाहते तो फिर उर्वा नूर, आप कीजिएगा। मैं कर लूं? कर लें, बिल्कुल करें, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। अबदा, उसने इबादत की, अबदू, उन सब ने इबादत की, अबदता, अबदता, आपने इबादत की, अबादतु, मैंने इबादत की, अबादतुम, आप सब ने इबादत की, अबदना, हम सब, अच्छा, अब अबदना, सारे हम बच्चे सब ने गौर से इबादत। सुने। अच्छा जी, ये टेबल थोड़ा सा मुश्किल है ना, अब हमने क्या करना है, आप सबकी वेकेशन चल रही है ना, अब हमने ये करना है, इस टेबल को हम 10 टाइम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये जो इसका ये ना अबत्ता, इसको हम अच्छी तरह से जब हम बोल बोल के सुनाएंगे, तो आप अपने बहन भाइयों को सुनाइए, आप मम्मा को सुना दें, बाबा को सुना दें, ठीक है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। कैसे पढ़ेंगे? अबदा, उसने इबादत की, अबदू, सब ने इबादत की, अबत्ता, आपने इबादत की, अबत्तु, मैंने इबादत की, अबद तुम, आप सब ने इबादत की, अबदना, हम सब ने इबादत की। अब इसको तीन अल्फाज को दोबारा सुनिए, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अब इसी तरह से अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, ठीक हो गया। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आ जाएगा। अब सब अनम्यूट करें, लेकिन फालतू कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आपने आंसर करना। हल नसरा, हल नसरू, हल नसरता, नाम नसरतु, ये आपने बहुत गौर से इसका ध्यान से जवाब देना। जब कहेंगे ता तो तू फटाफट कह देना, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, ठीक हो गया। अब मैं पूछ रही हूँ अपनी 4 फिंगर्स ओपन करके, हल नसरतुम, नाम नसरना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से सारे बच्चे एक साथ बताएंगे, हल खलका, माँ खलका, माँ क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं ना, और तो कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई भी चीज नहीं पैदा कर सकता। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं पैदा किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? माँ खलक, ठीक है। इसी तरह से जब मैं पूछूं हल खलकता, तो क्या कहेंगे? माँ खलकतू, हल खलकतुम,
मा खलकना, क्योंकि पैदा सिर्फ अल्लाह ताला ने किया है ना, तो हम जब हम कहेंगे क्या उसने पैदा किया, हम कहेंगे नहीं उसने पैदा नहीं किया। क्या उन सब ने पैदा किया? नहीं, उन सब ने नहीं पैदा किया। क्या आपने पैदा किया? नहीं, मैंने नहीं पैदा किया। ठीक है, क्या आप सबने पैदा किया? नहीं, हम सबने नहीं पैदा किया। हाँ, ये एक और चीज देखिएगा, जब हम कहेंगे ना ज़ैदुन, तो ज़ैदुन के ऊपर ये जो दो में तनवीन नजर आ रही है, दो पेश, इसको तोमतैन भी कहते हैं, कोई दो पेश कहते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो ये हम देखते हैं ना, ये वाले साइन जो है, और इसको जब हम दो पेश की बजाय दो जबर लगा देंगे ना, तो हम कहेंगे ये, इसको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट था, ये काम कर रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, ये बदल गया। जब इसके ये वाली तनवीन बदल गई, इसकी हरकत बदल गई, अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, पहले जैद काम कर रहा था, अब जैद के ऊपर काम हो रहा है। कैसे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे शैउन, चीज, यानी कि कोई चीज, ये सब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर तनवीन होगी, और शैयन जिसके ऊपर काम का असर पड़े। इसको जब हम अपने मुकालमे में या डायलॉग में देखेंगे, फिर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने जैद की मदद की? अनम्यूट कीजिए सब। नाम नसरा ज़ैदन। अब ये जो की वाला तर्जुमा ना, जैद की मदद की, ठीक है, जैद की मदद की, तो ये जो की वाला तर्जुमा, ये हमें ये जो दो जबर वाली तनवीन है इसने दे दिया। ठीक है, अब हम कहेंगे हल नसरु ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन, हल नसरतुम ज़ैदन, नाम नसरना ज़ैदन। अच्छा, अब ये जो शैयन देखा था ना, अब ये है हल खलका शैयन। क्या आप कोई चीज पैदा करते हैं? क्या आपने कोई चीज पैदा की? हम उसका जवाब नफी में देंगे, हम कहेंगे नो, हमने कोई चीज पैदा नहीं। मा खलका शैयन, मैंने कोई चीज पैदा नहीं की। हल खलकु शैयन, शैयन। अच्छा जी, हल खलकता शैयन, ओके जी, हल खलकतुम शैयन, मा खलकना शैयन। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें। जी 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 जी, बताइए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। जी जी जी, पूछिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? अच्छा जी, मेरा नाम है नौरीन अकरम। ठीक हो गया? और आपका नाम क्या है? तूबा। तूबा। अच्छा जी, ये ना नेक्स्ट वीक से आपको सामिया पढ़ाया करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, हम कहते हैं, किसे बताएं, सोबान कौन है? सोबान जी, आप जरा अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, आपने अनम्यूट, हाँ जी। अच्छा, आप ऐसा करें, अब आप बन जाएं टीचर, मैं आपको स्टूडेंट बन के आंसर करूंगी, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन कीजिएगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं हल फाला का शैयन, मैं फिर आंसर करूंगी। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। आप थोड़ी शायद, हाँ जी, अब मैं कहूंगी, अब मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ, ये मैं आंसर इसलिए करने लगी हूँ कि आपने ऐसे इशारा करके बताना है, ठीक है? आपसे पूछा हल फला का शैयन, आपने खुद फटाफट जल्दी से इशारा करना, मा फला का शैयन। ठीक है क्या जी? अब अब्दुल मोइज अगला सवाल करेंगे मुझसे। मा खलाकु शैयन, ठीक हो गया जी? अब उर्वा करेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। हल खलकत शैअन, मा खलकतु शैयन, ठीक है? जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आपने भी ऐसे फटाफट इशारे कर करके आंसर देने। जी, मुतहरा, आप हाँ जी, आप अगला क्वेश्चन कर लीजिए। मैं कर लूं? जी जी, करें।
खलक़तुम, खलक़तुम, ठीक हो गया। अभी आपको थोड़ा सा ना मुश्किल आती है लफ्ज को पढ़ने में, आपने क्या करना है, खा ला ख तू और अ के आगे मीम साकिन है, खलक़तुम फिर जोड़ लें। आप जैसे इंग्लिश के बनाते हैं ना, उसको एक पढ़ते हैं पहला लेटर फिर दूसरा तीसरा फिर जोड़ना शुरू करते हैं, इसी तरह से ये भी है, ठीक है। अरबी तो उससे आसान है, ये जल्दी समझ में आएगा। मा खलकना शैयन, अब आपने जब भी आंसर करना आपने इसी तरह से करना है कि खुद फटाफट से इशारे करने। ये कार्ड आप लोगों के पास मौजूद है, आप इसमें से देखा करें, इसमें सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना सब कुछ इसमें मौजूद है। तो इसको रिपीट करने के लिए आप बहुत अच्छा से इसमें सब कुछ इकट्ठा मिल जाता है। इसको अपने पास पास रखें और पूरे दिन में कम से कम एक मरतबा जरूर पढ़ें। और अगर हो सके बहुत बेहतर है कि हर नमाज के बाद 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद इसको एक एक मरतबा देख लें, फिर ये कि 5 मरतबा हो जाएगा। जी जी, मेरे पास एक दुआ है जिससे शैतान आता ही नहीं हमारे पास। कौन सी दुआ बताएं जरा मुझे। अल्लाह ला इलाहा। अच्छा पूरी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे प्यारी दुआ जो हमने शुरू में सीखी थी, पहली आदत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है क्या जी। शैतान क्या चाहता है, शैतान चाहता है कि आपको भूल जाए कि आपके पास ये कार्ड भी आपने पढ़ना भी था। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर अल्लाह ताला हमें फटाफट से अपनी पनाह में लेके और जल्दी से हमें याद करा देंगे कि हमने ये देखना था पढ़ना था, हम इसको पढ़ेंगे और हम अल्लाह ताला से वादा करेंगे कि ये पॉकेट बुक हमारी पॉकेट में ही रहेगी। जी जी, पूछिएगा। मगरिब के बाद हमें दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, ठीक हो गया। ये जो मम्मा आपको बताती है ना, इसके आपने पूरी तवज्जो से अमल करना सारी बातों पे, क्योंकि मम्मा चाहती ना हमारे साथ अच्छा अच्छा सा हो, ठीक है ना। टीचर भी इसी तरह से चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा अच्छा हो। तो आपने टीचर की बात, मम्मा की, सारे बड़ों की बात अच्छी तरह से सुननी है और उस पे अमल भी करना है। और इन सब से पहले अल्लाह ताला से वादा करना है, अल्लाह ताला के सारे हुक्म मानने। और ये भी हमने कोशिश करनी कि अपनी पॉकेट बुक को अपनी जेब में रखें, लड़कियां अपने पर्स में रख लें या करीब करीब जहां जहां आप बैठते उठते वहां रख लें। हमारे पास कुरान के मुकम्मल होने तक इस तरह के पॉकेट बुक तो है, लेकिन ये आदत इसका ये हो जाएगा ना कि जब हम इस पॉकेट बुक को पढ़ने के आदी होंगे तो कुरान मजीद तो हमारे हर घर में मौजूद है, हमें उसकी भी आदत पड़ जाएगी कि हम इसको पढ़ें। आज की जो अच्छी सी मजेदार सी बात क्या हुई, ये देखिए, ये जो हमारी बार थी ये कहाँ पहुंच गई, ये 30,000 के करीब करीब पहुंच गई। एक मरतबा सारी इस स्माइली की तरह स्माइल कीजिए। हमने क्या किया, हमने लेसन 1 से लेके अब तक कितने 116 न्यू वर्ड सीख लिए, जो कुरान मजीद में 28,854 टाइम आए हैं। और आज के सब ये जो 10 हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं या फिर खुद आपस में बात करें, चलें। मैं आपसे सवाल पूछ सकती हाँ जी पूछिए, जरा थोड़ा सा लाउड बोले, ऊंचा बोले थोड़ा सा। हूँ? मैम क़यामत के दिन जो है ना, जब हम जहन्नम में जाने लगे होंगे, अगर हमारे गुनाह ज्यादा होंगे तो अगर किसी और को इनका क्वेश्चन समझ में आया तो मुझसे जरूर पूछिए। मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी बेटा, मुझे ना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। किसी और को इनका सवाल समझ में आया तो मुझे ऊंचा सा बोल के बताएं। इतना मुझे पता चला क़यामत के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो एक फ्लावर नजर आ रहा है ना, हाँ जी, अब हम जितने लेसन हमने कंप्लीट किए ना, अब आपके पास 10 फ्लावर जमा हो गए हैं, ठीक है। आपके पास प्यारा सा बुके बन गया है। ये फ्लावर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इतने अल्फाज आपने सीख लिए, अब इनकी खुशबू हमारे आसपास फैल गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फ्लावर की केयर करनी है। अब हमने ये सारा जो पढ़ा इसको याद रखना है, ठीक हो क्या जी। इंशाल्लाह हम ये जो हमारी बार 40,000 वाली है इसको हमने यहाँ तक ले आना है। तकरीबन ये हमारे ऐसे हो जाएंगे कि आधा, यानी कि ये जो हम QC1 में अपनी आधी बार कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है क्या जी। अच्छा जी, आपको अल्लाह ताला ने चूज कर लिया कि ये जो सब बच्चे हैं ये क्या करेंगे, कुरान सीखेंगे। एक दुआ आपने हमेशा हमेशा के लिए इसकी आदत बना ले, रब्बी जिदनी इल्मा, ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं अल्लाह ताला से दुआ कि ऐ अल्लाह, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।